Recording have been started, so we're starting with the first session. आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट है. अगर आप आज का सेशन देखेंगे, मैं खाली ऑन द टॉपिक बात नहीं करूंगा. आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू, आई विल ट्राई टू टेल यू द पैटर्न, आई विल टेल यू मोर अबाउट जीपेट एंड एवरीथिंग. सो थोड़ा सा this is not how we actually do the sessions. Usually sessions on the topic रहते हैं, but since this is the first session, यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने मुझे पहले नहीं सुना है, मे बी इन ओरिएंटेशन सेशन और कोई सेशन में ऐसा कोई है, just quickly raise your hands guys. आप will see ऐसा कोई स्टूडेंट है who haven't done an interaction with me. I don't see hands raised, but still, what I will do is will walk you through what we are targeting for today. So today, I will just give a very brief introduction about myself. Then we will talk about GPET in particular because that's our target audience at the moment. We'll talk about pharmaceutics in GPET. So I also take pharmaceutical analysis or analytical chemistry. Kevlani sir will take your pharmacology. Yes, sir will take your chemistry. Kirtan sir for chemistry. So हर सब्जेक्ट के लिए फाइंड अ फैक्टोरियल, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फार्मास्यूटिक्स. फार्मास्यूटिक्स में एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है फॉर जीपेट. सो सिंस वी स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस आल्सो. सो विल टॉक अबाउट दिस सिलेबस आल्सो, विल टॉक अबाउट जीपेट आल्सो, एंड देन हम हमारे टॉपिक पे जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म. Usually my sessions are 1 hour 30 minutes or 90 minutes in total. अगेन इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक. कभी कभी ये 2-3 घंटे के सेशंस भी होते हैं. सो आई विल ट्राई टू गिव यू ब्रेक्स अगर ऐसा कुछ होता है, बट आई ट्राई कि वी कवर सेशंस इन सीक्वेंस. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वे ट्राई के इट गेट्स कवर्ड इन 2 or 3 सेशंस, अनलेस बहुत ही बड़ा कोई टॉपिक है सच एज क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो 7-8 सेशंस में जाता है. व्हेन आई टॉक अ सेशन, आई मीन 1.5 hours ऑफ अ सेशन. Usually within this sessions, you will see there are two types of things that we are going to do for interaction. Just to avoid any kind of confusion or delays in this session, or you will see you will need to enter your questions in the chat window. At any point of time, अगर आपको कोई भी doubt आता है, do add that in the chat window. I will try to answer that within this session. ऐसा नहीं हो कि at the end of the session उसे answer कर रहे हैं. अगर ऐसा कुछ होगा, I will tell you कि this will take that at the end of the session. But within this session, we try to clear all the doubts. So जब तक सेशन खत्म होगा, you have clarity on concepts, ताकि उसके बाद सेशन के बाद you go just revise things. So that is one mechanism of solving your queries. Second mechanism of solving queries, अगर आपको सेशन में कुछ समझ नहीं आया है, you haven't asked your questions, I try to bug you कि questions पूछो. अगर आप still questions नहीं पूछ रहे हो, तो what we will do is we'll try to solve them after the session. How do we do that? You can just ping me anytime on the WhatsApp. I'll try to take that. If that is not solved, you can reach out to your sir. He will direct it to our 4 team members. वो question आपको solve होगा. So that is this question solving mechanism. इसके सिवाय within the sessions you will find there are questions being asked. So हर topic में what I try to do is I try to bring in previous year's question papers के कुछ questions on those topics. But ऐसा नहीं होगा कि सारे ही questions cover कर ले जाएंगे. We keep those questions for practice, we keep those questions for tests also. So but within session you will find 1 or 2 questions coming up, 3 questions, 4 questions, depending on the length of the content that we are delivering. So that is how the sessions are planned. Second, third item is you will see like my content is more exhaustive in nature. काफी targeted होगा GPET के लिए, but I usually use a blackboard mechanism of teaching. So you'll see me writing everything, explaining everything within the sessions. But after the sessions, you will be given session notes as a PDF. So वहाँ पे वो written notes अगर आपको देखना है तो written भी available रहेगा. आपको in a print version देखना है वो भी available रहेगा. In addition to the modules that will be delivered at your doorstep. So वो चीजें आपको available रहेंगी. So that's a brief about how I usually conduct sessions on pharmaceutics, pharmaceutical analysis. थोड़ा बहुत अगर if you need, we can tailor things. काफी बार ऐसा होता है students आते हैं so are going at a very high pace. Because since I have been doing this for last couple of years, I tend to get a pace. So they come to me, sir थोड़ा pace ज़्यादा हो गया, या sir syllabus खत्म नहीं हो रहा है, slow हो गया. We'll try to adjust all those things. Content में समझ नहीं है, we'll try to adjust all those things. So feedback mechanisms हैं. Practically at the end of the session, I'm very happy to take all the feedbacks from the session. कुछ समझ नहीं आया, अगर सेशन में आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट का जरूरत,
we are very open to that feedbacks also. Even after the sessions, agar kuch problem, just feel free to reach. Okay. So for the students who don't know me, I will just quickly give a very brief introduction. जो initial slides है वहाँ पे I'm not using the Blackboard method, I'm using a presentation method. सब presentation पे है. So I don't want to use much of time for that. So my name is Rajat Goyal. I'm a faculty advisor at Appomind, a mentor for the students at Appomind since the initiation of Appomind. So you will see, I've done my bachelor's of pharmacy from Allen College of Pharmacy. That was 2016 when I graduated from Allen College of Pharmacy. Uh, I appeared for my GPAT exam and got a All India rank 64 in 2016. Then I appeared for my NIPER exams. Again, you need to be qualified to appear for NIPER exams if you don't know about that. So once I got my qualification with All India rank 64 in GPAT, I appeared for my NIPER exams and got a All India rank of 18. After that, I started my post-graduation with NIPER Mohali in pharmaceutical technology, pharmaceutics. So I completed my master's in pharmaceutics from there in 2018. But by that time, I was already mentoring a lot of students. So उस time से I am teaching a lot of students. But that was not a edtech platform. At prior COVID, it was more of a classroom setup we used to do. So at different institutions, I have done that. And I've done jobs in couple of pharmaceutical companies. So that's a very brief about me. If we talk about pharmaceutics in a whole, what do we understand by pharmaceutics? So it's a discipline of science, pharmaceutical sciences or pharmacy that deals into converting chemicals into formulations. So क्या होगा आपके पास एक chemical entity आ रही है, आप लैब में synthesis कर रहे हो, you are getting drugs. अब उसको आप efficacy को maintain रखते हो या safety को maintain रखते हो, कैसे patients को deliver करते हो, that is you're creating a dosage form. So it is nothing, it is science of dosage form design, how you design your doses. That is what we're dealing in pharmaceutics. So pharmaceutics का ultimate क्या है? You design dosage form that can deliver drugs, chemical entities, active pharmaceutical ingredients, all those are same things to the patient. So that is what you're dealing into pharmaceutics. Now, when you're dealing with pharmaceutics, खाली ऐसा नहीं है कि आपने tablet बना लिया, capsule बना दिया. That is not like the end dosage form is there for sure. That's the ultimate goal of a pharmaceutics scientist. But formulation scientist, I would say. But there are a lot of mechanisms that are happening. There are a lot of machineries that you're using. There are a lot of unit operations that you're using. So वो सारी चीजें हम pharmaceutics में पढ़ते हैं. And owing to that, you would have seen pharmaceutics एक बहुत important subject है when it comes to your postgraduate, and काफी लोगों को interest होता है pharmaceutics में. I would say in comparison of other sciences, other subjects, pharmaceutics easy subject है. I would be biased on that because I have been teaching that. I have a postgraduate in that. I could be biased in that, but मुझे easy लगता है and I've found a lot of students जिनको easy लगता है. इसीलिए I would say it's a scoring one. So you can score in this subject very easily. So आपको अपना पूरा push देना है इस subject पे ताकि you are able to get maximum correct answers in this to boost your score. So that is pharmaceutics. अब GPAT के अंदर क्या है? Like what are the subjects? B.Pharm में कैसा है ना, pharmaceutics का clarity definition नहीं है. So what I tend to tell students is that you take your pharmaceutical technology, you take your pharmaceutical engineering, yeah, it's just a unit operations we बोलते हैं. You take your physical pharmacy, you take your biopharmaceutics, you take your pharmacokinetics, you take your microbiology and biotechnology, इन सबको club करो. And you club this, you get your pharmaceutics. So इतना बड़ा syllabus है pharmaceutics. Okay. So when you say you have got your first component here, you have got your physical pharmacy here, you have got your biopharmaceutics and pharmacokinetics in here, you have got your microbiology and biotech. So काफी broad syllabus लेके हम चलते हैं. And you will see this kind of clarity if you try to divide जो 38 questions आते हैं. So since GPAT का pattern काफी बदला है कुछ सालों में, we will just focus on the last 3 years यहाँ पे, जहाँ पे we'll see constantly 38 questions का एक average maintain किया गया, and we'll see quite a pattern that microbiology, biopharm, physical farm, farm tech में से सब में से question आ रहे. तो उससे पहले क्या था, थोड़ा you will see farm tech में से ज्यादा question आते थे. It was a variety, there were high number of questions. ठीक है, फिर थोड़ा कम होता रहा, ज्यादा होता रहा. But as of current pattern, 38 क्वेश्चन टू दी डॉट पूछे जाते.
they have that divided section and it becomes easy for preparations. Okay? So अब pharmaceutical technology में क्या आता है, pharmaceutical engineering में क्या आता है? सिंपल है, if you are dealing with pharmaceutical technology, dosage form जो आज सेशन है वो we deal into capsule, tablet, pharmaceutical aerosols, parenterals, ophthalmic preparations, suspensions, emulsions, suppositories, semi-solids, liquids, pre-formulations, packaging materials, cosmetics, novel drug delivery, सब कुछ इसमें जहां पे आप प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर सकते हो वो आपका टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टेक्नोलॉजी? अपने को टेक्नोलॉजी वर्ड से याद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपने को याद आता है एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, आईओएस टेक्नोलॉजी। तो वो क्या है? आईओएस इज अ प्रोडक्ट, एंड्रॉइड इज अ प्रोडक्ट। सो फॉर अस टेबलेट इज अ टेक्नोलॉजी, टेबलेट इज अ प्रोडक्ट। So tablets में भी there are a lot of categories that we create. We create different products in tablets. So वो सब हमारे लिए टेक्नोलॉजी। So anything that we are doing in a innovative way जो हम पेशेंट्स को डिलीवर करेंगे, that is a technology for us and that is what we are trying to create in pharmaceutical technology. Now engineering unit operation ले लेते हैं। Size reduction, size separation, drying, mixing, extraction, crystallization, evaporation, distillation, fluid flow, heat transfer, filtration and centrifugation, dehumidification, humidification, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, जितना भी आप यूनिट ऑपरेशंस जो आपको चाहिए एक यूनिट को चलाने के लिए प्लस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो आपके स्टेप्स आपको चाहिए वो सारा आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ओके, सो थिंक थिंक दिस एज आपको एक गाड़ी बनाना है, गाड़ी बनाने के लिए आपको हर कंपोनेंट को फिट करना है। सो उस कंपोनेंट को जब आप फिट कर रहे हो यू आर डूइंग डिफरेंट स्टेप्स। सो यहाँ पे भी अगर आप एक टेबलेट बना रहे हो डूइंग डिफरेंट स्टेप्स। ओके, सो दैट इज हाउ engineering come into place. So ये pharmaceutical engineering, गाड़ी बनाना is mechanical engineering. Physical pharmacy are dealing into theoretical sciences now. Matter properties जो हो गया हमारा, micromeritics हो गया, interfacial surface phenomena, viscosity, rheology, complexation, kinetics and drug stability. So that is there. Then biopharm. Biopharm is again how a drug is going to perform in the body. So for example, you're taking a drug at time 0. After 30 minutes उस drug का क्या होगा, after 60 minutes, after 4 hours, after 8 hours, after 12 hours क्या होगा, वो हम स्टडी करने की कोशिश कर, like how drug is going to act in human body, उसके mechanism को स्टडी करने के लिए biopharmaceutics है। And pharmacokinetics is more about modeling that thing. So absorption, distribution, metabolism, excretion यहाँ पे आ जाते हैं. Then you get into bioavailability, bioequivalence kind of things. यहाँ भी basic pharmacokinetics, pharmacokinetic modeling करेंगे, compartment modeling करेंगे, non-linear kinetics को समझेंगे. So quite a huge thing there. Then microbiology and biotechnology. So pharmaceutical technology में क्या था? We are using chemicals, we are using active pharmaceutical ingredients. बायोटेक्नोलॉजी की जहां पे बात आती है, वी आर यूजिंग प्रोटीन्स, वी आर यूजिंग पेप्टाइड्स, एनीथिंग दैट इज डिराइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल सोर्सेज, वी आर ट्राइंग टू डिलीवर अ प्रोडक्ट ऑफ इट, वी आर ट्राइंग टू डिलीवर अ टेक्नोलॉजी ऑफ इट, इट कम्स अंडर बायोटेक्नोलॉजी। अब जब हम ह्यूमंस में बात करेंगे तो ह्यूमन से पहले क्या आया, या प्रोकैरियोट्स से पहले क्या आया, यूकैरियोट्स आया। सो जो भी हमारा माइक्रोब्स है उससे हम कैसे डील करेंगे? So microbes could be contamination, microbes could be disease causing agents, microbes could be useful for us to develop antibiotics. So सब चीजें वहां पे हम स्टडी कर लेंगे। So kind of introduction, microscopy, trainings, बायोलॉजी हो गया उनका, फंगई, वायरसेस, एसेप्टिक टेक्निक, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, वैक्सीन्स बनाया, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे किया, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी स्टडी किया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टडी किया, वो सारा कंपोनेंट यहाँ पे आ। So that's pretty much about the syllabus. ये हमारा प्रॉपर सिलेबस है if you're targeting GPAT। हाँ, इसको देख के किसको ऐसा लगा सर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे हो, किसको ऐसा लगा? जैसे सर यस, जस्ट राइट यस। अगर किसी को ऐसा लगा दिस इज अ वेरी ह्यूज सिलेबस, हाउ विल वी कंप्लीट दिस, हाउ विल प्रिपेयर फॉर दिस, जस्ट राइट यस। अगर नहीं लगा तो जस्ट राइट नो। guys need to be very interactive in my sessions because I will stop the session if you're not being interactive. I am saying no, which is very good for us. Okay. I know जिनने yes लिखा है, at the first glance it looks very very overwhelming कि इतना सारा सिलेबस है, बट एक अप्रोच के साथ हम उसे कंप्लीट करने की जब कोशिश करेंगे वो 100% कंप्लीट होगा। प्रॉपर रिवीजन के साथ आपको वो याद भी रहे। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट।
अब हम टॉपिक पे जाएंगे, बट टॉपिक से जाने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, we'll switch to the blackboard method. बट उससे पहले, if you guys have any doubt, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछना है, लाइक टीचिंग अप्रोच पे सेशंस कैसे कंडक्ट होंगे या फार्मास्यूटिक्स एज अ होल कैसे कंडक्ट होगा, आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दैट। डाउट्स क्लियर कर लो, मन में कुछ भी डाउट है वो पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई एम टेकिंग अ पॉज ऑफ 2 2 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक। उसके दौरान किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज ऐड दैट इन द चैट विंडो so that we get it clarified, and we start with our topic, introduction to the dosage forms. Okay, so we have a question in the chat window that says reference book for this subjects. So Rucha, reference books काफी होती है, टॉपिक के हिसाब से भी मैं आपको रेफरेंस बुक बता सकता हूँ। So for example, if you are talking with pharmaceutical technology, industrial pharmacy by Lackman करके एक बुक आता है, that is what I refer for pharmaceutical technology. So you can get that. But what I will try to say to every student, रेफरेंस बुक्स आर मेंट फॉर रेफरेंसिंग। अभी रेफरेंस बुक का जो साइज होता है ना, वो हजारों पेज में जाता है। एंड जब जीपेट का अप्रोच हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ टारगेटेड mechanism there. We are trying to get the targeted syllabus done. So targeting करने का जो approach है, that is done by the sessions that we are conducting. So आप देखोगे ना, तो काफी targeted चीजें हम study करते हैं to avoid the noise that is being created by the extra content from the reference books. But said that अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, सो लेट्स से एक स्टूडेंट होगा जो आज के दिन खाली 1.5 घंटे का सेशन अटेंड करेगा और अगले सेशन में सीधा आएगा। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो तो डोंट गो विद द रेफरेंस बुक। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आज का 1.5 घंटे का सेशन अटेंड करने के बाद वापस 1.5 घंटा इस चीज को सुनेगा, नोट्स को रेफर करेगा, एंड उसके ऊपर भी आप एस्टिमेट करना चाहते हो, एफर्ट्स डालना चाहते हो, तब वो रेफरेंस बुक पे जाना। सो रेफरेंस बुक शुड बी योर सेकेंड सॉर्ट। जितना कंटेंट, जितना सिलेबस यहाँ पे कवर करा जा रहा है, उसको प्लीज 100% पहले कवर करें, एंड देन गो टू द रेफरेंस बुक्स। व्हाई एम सेइंग दिस, होता है क्या है, स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक को देख के खो जाते हैं एंड जो कराया गया है उसको भी भूल जाते हैं। सो फर्स्ट एपोमाइंड से जो भी मटेरियल आपको दिया गया, मेक श्योर 100% आपका वो हो गया। उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जाइए। हर हर टॉपिक से पहले या हर काइंड ऑफ सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेफरेंस बुक बताऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। So the book Industrial Pharmacy by Lackman is a reference standard for this particular subject altogether. Any other question, students? बेस्ट जीपेट का बुक जो है ना, जैसा लाइक व्हेन यू से जीपेट का बुक, सो देयर आर टू थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट। वन इज जहाँ पे डंप ऑफ एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। नाउ व्हेन यू टेक दोस काइंड ऑफ बुक्स जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है आंसर्स गलत होना। ठीक है, सो होता क्या है, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, सर ये क्वेश्चन का ये आंसर है और मैंने इस बुक में से पढ़ा। सो दैट बुक विल हैव अ एमसीक्यू, एमसीक्यू का पीछे आंसर दे दिया है, बट वो आंसर वहां पे गलत है, एंड स्टूडेंट्स आर गेटिंग रॉन्ग आंसर, दे आर गेटिंग रॉन्ग आंसर्स, एंड फिर वो एग्जाम में भी वही गलत आंसर मार्क करके आए। सो जीपेट के जो बुक्स है ना, द प्रॉब्लम इज दैट द क्वालिटी of MCQs are good, but you need to validate your answers with the actual references, with the actual notes. Okay, so इसीलिए मैं कभी भी कोई बेस्ट जीपेट बुक नहीं बोलता, बट सेड दैट अगर आप एक स्टेज पे हो जहां पे आपका मेजोरिटी ऑफ सिलेबस खत्म होने आया है, तब I say there's a book called as Inamdar, which tells you about all the previous GPAT years के paper and gives you an explanation of all the answers. You can refer that book. It's written by N.N. Inamdar, GPAT companion करके आता है। Okay, Devanshi, your notes, we tell them as modules.
द मॉड्यूल्स विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप्स। एक बार आपका एनरोलमेंट खत्म हो गया, आपका एड्रेस इनपुट हो गया सिस्टम में, तो यू शुड गेट योर नोट्स एट योर डोर स्टेप, डिलीवर होता है। सेकेंड थिंग, अगर आप ऑफलाइन सेशन में आते हो तो आप ऑफलाइन ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हो। That's a very good question. So we have a question. I've referred some previous year papers and was not able to identify that how much depth of one topic should be referred. And this is where Kavya we are trying to help you. Okay. So you cannot actually gauge कि कितने डेप्थ में जाना है. So for an example, मैंने आपको भी दिखाया था कि there were 9 questions फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी ऑल टुगेदर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में से 9 क्वेश्चंस आए हैं एंड पिछले 3-4 सालों से दैट इज द ट्रेंड। अब आप माइक्रोबायोलॉजी का बुक उठा के पढ़ोगे तो यू हैव योर टोटोरा, यू हैव योर बी एन शाह, यू हैव गॉट लॉट ऑफ बुक्स। अगर आप टोटोरा पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी का, इट्स अ वेरी लेंदी बुक एंड इतना डेप्थ में है कि आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो उससे। सो आपको उतना जरूरत तो नहीं है, आपको जितना जरूरत है उतना डेप्थ में लेके जाना काम मेरा है एज अ मेंटर। एंड एट एपोमाइंड यू विल सी के रेफरेंस बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ विच इज नॉट अननेसेसरी। मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उतना ही डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वो कितना डेप्थ में जाना है दैट इज कवर्ड इन द ऑनलाइन सेशन, दैट इज कवर्ड इन द ऑफलाइन सेशन। एंड आई थिंक किसी एक स्टूडेंट ने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, सर कि कौन सा बुक रेफरेंस बुक रेफर करना है। एंड एट दैट पॉइंट मैंने बोला आप 100% नोट्स रेफर कर लो, तो आपका जो डेप्थ वाला इशू है ना, कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो खत्म हो गया। उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हो वो एक्स्ट्रा है। सो व्हाट इज बीइंग कवर्ड इन सेशन इज अ डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर जीपेट एग्जाम। उसके ऊपर आप जो पढ़ोगे दैट इज समथिंग दैट यू आर डीलिंग इन एक्स्ट्रा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर डेडिकेटेड, एक्स्ट्रा पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, बट जितना रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम है दैट इज बीइंग कवर्ड इन दी सेशंस। इसलिए प्लीज बी श्योर कि आप सेशंस अटेंड कर रहे हो, लाइव सेशंस अटेंड करो। इज दिस क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस? गाइस यू आर नॉट आस्किंग the questions. I see only girls asking the questions. काव्या, दिवांशी, हीर, रुचा, लड़के क्या सो रहे हैं? Okay, with that, I will start the session. We have spent pretty 30 minutes to understand about me, about how the sessions are conducted, and almost that is a pattern that is being followed इतने सालों से. Okay, I'm being doing this for many years now. So you'll see a pattern that is being followed in the slides. You will get notes. ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल्स आ गए क्या, तो मॉड्यूल्स ही आपका रेफरेंस पॉइंट है। You will get a PDF notes that is uploaded on the Epomind app, ये लेक्चर का वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। एंड मैं राइटिंग करूंगा, मैं यूज अ ब्लैक बोर्ड और आई विल से व्हाइट बोर्ड एट द मोमेंट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माय हैंडराइटिंग, don't worry, you are going to get a printed version of that, PDF version of that within the Epomind app after this session, so it becomes easy for you. On the pace, are you all okay with the pace of English that I'm speaking and Hindi that I'm mixing in, or you want it to be only in English, only in Hindi? Because I know a lot of students जो आते हैं गुजराती मीडियम से आते हैं, डिफरेंट स्टेट लैंग्वेजेस से आते हैं, उनके लिए only English becomes tough. So I try to mix Hindi and English. Are you guys okay with that? Perfect. ठीक है, मैं ये चीज हमेशा हर बैच के स्टार्टिंग में पूछता हूँ एंड आई गेट द सेम आंसर एवरी टाइम, यूज द मिक्स लैंग्वेज। सो वही हम करेंगे। विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म नाउ। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, हमें कुछ चीजों को जो समझना है वो क्या है। तो जब डोजेस फॉर्म बनाने हम जाते हैं, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ डोजेस फॉर्म, कि डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। ओके,
एंड वो बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? वो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे लिए हैं, let's say the basic component that you are dealing with is drug. You have your excipients. Okay, you combine this two, you try to combine this two, and you will get your drug doses form. Now, what do we understand by the term drug? Drug क्या है? It is an agent identified for the use of diagnosis. डायग्नोसिस करने के लिए काम आएगा, कोई डिजीज का मिटिगेशन करने के लिए काम आएगा, मतलब डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए काम आएगा, या ट्रीट करके क्योर करे कोई डिजीज को, और इवन प्रिवेंशन के, इवन वैक्सीन्स आर अ ड्रग. Okay, so drug is defined as an agent that is intended for diagnosis of the disease, mitigation of the disease, cure of the disease, or prevention of disease in humans and any sort of animals also. So we will be majorly sticking to humans, but animal drugs भी आते हैं वेटरिनरी में जो यूज होते हैं. Okay. अब जब भी एक नया ड्रग फाउंड होता है, it is either derived from what? Derived from plant or animal source. Okay. So for an example, malaria quinine, it is coming from a plant source. We have created a synthetic source. तो हमने क्या किया, एक प्लांट सोर्स से पहले ड्रग को आइडेंटिफाई किया, एंड फिर केमिकल प्रोसेस से उसका केमिकल सिंथेसिस किया, उसको बना लिया. या लेट्स से इंसुलिन, इंसुलिन इज अ बायो प्रोडक्ट, ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है और डिफरेंट एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है. हमने क्या किया, हमने उसे आइडेंटिफाई किया एंड देन उसे हमें लैब में बना लिया. लेट्स से वी से सम एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स क्या है? it's the antibody structures that are being created. हमने पहले आइडेंटिफाई की एंड देन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने वो बनाया. सो वी कैन क्रिएट ड्रग्स, we can find new drugs from plant source और एनिमल सोर्स, एंड उसे हम बोलते हैं हमने ड्रग डिस्कवरी किया. जब हमें एक ड्रग मिल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसमें एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं. वी ऐड एक्सिपिएंट्स और वी ऐड एडिटिव्स भी बोलते हैं इसको. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, उसको एपीआईज भी बोलते हैं. व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज नथिंग, इट्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. So anything which is actively contributing into efficacy and safety is your API. Excipient क्या है? These are non-drug components. ये क्या होते हैं? Non-drug components होते हैं. इसका मतलब क्या है? इनका efficacy और safety के साथ कोई लेना देना नहीं. मतलब ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी के साथ ये कोई छेड़खानी नहीं करे, बट इनका खुद का भी कुछ एफिकेसी नहीं होता और सेफ्टी का इशू नहीं होता. अगर सेफ्टी का इशू कहीं पे भी आता है तो हम उस चीज के साथ डील ही नहीं करते. यूजुअली फार्मास्यूटिकल साइंसेज में सेफ्टी इज प्राइमरी थिंग. अगर सेफ्टी का कहीं पे भी इशू है, उस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं. अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, ड्रग और हमारे एक्सीपेंट को, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक डोजेस फॉर्म. So what we do understand by dosage form? Dosage form are the means by which drug molecules are delivered to the site of action. So ये क्या है? ये वो जरिया है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम ड्रग को साइट ऑफ एक्शन पे डिलीवर करते हैं. लेट्स से मुझे सर दर्द हुआ है, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे पैरासीटामोल लेना है. अब मैं पैरासीटामोल ऐसा तो नहीं है सर में डाल दूंगा सीधा. मुझे क्या करना पड़ेगा? पैरासीटामोल को साइट ऑफ एक्शन पे भेजना है. अब साइट ऑफ एक्शन क्या है? मेरा ब्लड है. अब मेरे पास क्या रास्ता है? मेरे को बहुत ही ज्यादा सर दर्द है, तो भाई मैं हॉस्पिटल जाके बोलूंगा कि इट्स अनबियरेबल, इंजेक्शन दे दो. यूजुअली वो नहीं करेंगे. क्या करेंगे? हम जाएंगे, एक डोलो 650 या एस्पिरिन या एनी पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन लेंगे, उसका टेबलेट लेंगे. टेबलेट क्या होगा? टेबलेट स्वेल करेंगे हम, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाएगा, मतलब साइट ऑफ एक्शन तक जाएगा. सो व्हाट इज टेबलेट? टेबलेट इज अ डोजेज फॉर्म. पैरासीटामोल इज योर ड्रग. सो टेबलेट वो डोजेज फॉर्म है जो पैरासीटामोल को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने का काम करता है.
So this is the means by which drug molecules are delivered to the site of action. अब हमें डोजेस फॉर्म बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? वाई वी एक्चुअली नीड, क्या जरूरत है डोजेस फॉर्म बनाने का? डोजेस फॉर्म बनाने का जो सबसे पहला जरूरत है ना, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी. सो कन्वीनियंट तरीके से, सेफ तरीके से हम दवाई को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, वो हम इसमें उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है हमारा डोजेस फॉर्म. सो इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ द डोजेस फॉर्म. सो दैट इज द फर्स्ट नीड टू क्रिएट अ डोजेस. फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधा पाउडर दे दूं, मान लो चम्मच से पाउडर ले लो, ऐसा नहीं कर सकते. सो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डोजिंग का इशू आ सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, वो सब डोजेस भी प्रॉपर इसमें हम दे पाए. इसके सिवाय इट जो आप डोजेस फॉर्म बनाते हो वो क्या करता है, इट इट प्रोटेक्ट योर ड्रग फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है? एटमोस्फेरिक कंडीशन से. लेट्स से एटमोस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो हम उससे प्रिवेंट कर पाएंगे. लेट्स से सनलाइट है तो सनलाइट से प्रिवेंट कर पाएंगे. लेट्स से टेम्परेचर वेरिएशन है, उन सब चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ डोजेस फॉर्म. So that is the need of creating the doses. उसके सिवाय we can protect the drug substance from destructive influence in the body. So let's say we are delivering a product, we are delivering a doses form जिसमें एक ड्रग है जो डिग्रेड हो जाता है. डिग्रेड हो जाता है कहाँ पे? डिग्रेड बाय गैस्ट्रिक एसिड. सो मैं इसको प्रिवेंट कर सकता हूँ, मैं इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकता हूँ, इस डिग्रेडेशन को रोक सकता हूँ बाय क्रिएटिंग अ एंटेरिक कोटेड डोजेस फॉर्म. ओके, सो अगर मैं एंटेरिक कोटेड डोजेस फॉर्म बनाऊंगा तो मैं उसको रोक पाऊंगा. विल गेट इनटू डिटेल्स एंटेरिक कोटेड क्या होता है जब हम वो पढ़ेंगे, बट दैट इज अ नीड ऑफ क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म. इसके सिवाय अगर हमारे ड्रग का टेस्ट बिटर है तो हम उससे छुपा सकते हैं, तो कैन कंसील इट. अगर उसका टेस्ट खराब है, लेट्स से सॉल्टी टेस्ट है, या उसका ऑर्डर खराब है, स्मेल इतना अच्छा नहीं है, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं? कंसील कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ डोजेस फॉर्म. इसके सिवाय लेट्स से यू वांट टू डिलीवर समथिंग इन अ लिक्विड प्रिपरेशन, ठीक है, जहाँ पे मटेरियल क्या है? इनसॉल्युबल है. अब अगर इनसॉल्युबल होगा तो वो आपकी बॉडी में कैसे जाके सॉल्युबलाइज होगा? तो इनसॉल्युबल मटेरियल को सॉल्युबल बनाने का काम भी डोजेस फॉर्म डिजाइन के तरीके पे हम कर सकते हैं. इसके सिवाय वी कैन कंट्रोल दी ड्रग एक्शन. ड्रग एक्शन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल क्या कर सकते हैं? उसका रेट ऑफ एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और उसका टाइम ऑफ एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. सो ये जो चीज होती है इसे को हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पढ़ते हैं, विच इज अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. सो ये एक पूरा अपने आप में सब्जेक्ट है. लोग इसमें फार्मास्यूटिक्स में मास्टर्स करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है. हाउ कैन यू एक्चुअली कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी, लेट्स से इन अ कैंसर पेशेंट. अब कैंसर पेशेंट को हर 3 4 5 घंटे में मैं मॉर्फिन का इंजेक्शन नहीं दे सकता, उनको बहुत पेन होता है. तो हाउ कैन वी डिलीवर अ मेडिसिन टू देम जो 24 घंटे तक उनको पेन रिलीफ रख सके? सो वो सब चीजें हम फार्मास्यूटिक्स में डोजेस फॉर्म डिजाइन करके कर सकते हैं. इसके सिवाय ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, ऑप्टिमल ड्रग एक्शन प्रोवाइड करना. ऑप्टिमल ड्रग एक्शन की क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और एक प्लेयर के पैर में इंजरी आती है, स्प्रेन आ जाता है. अब मैं उसको एक पैरासीटामोल की गोली दूंगा या उसको एक स्प्रे कर दूंगा. सिंस मुझे एट द टाइम ड्रग एक्शन चाहिए कि वो प्लेयर मेरा खेल सके, मैं उसको पैरासीटामोल की गोली दे सकता हूँ. बट इंस्टेंट एक्शन के लिए मैं क्या दूंगा? उसको एक टॉपिकल फॉर्मुलेशन अप्लाई कर दूंगा, यूजुअली जेल और स्प्रे, जो उसका वहां के साइट ऑफ एक्शन पे तुरंत एक्शन करके पेन को रिलीज कर. सो दैट इज हाउ यू ऑप्टिमलाइज योर
एक्शन। लेट्स से किसी को टॉन्सिल हो गया, okay, I mean, you can treat tonsils by different mechanism, but उसको एक सिंपल सा विक्स का गोली देके भी उसका जो अनइजीनेस है उसे रिलीव कर सकते हैं। लेट्स से किसी को नोज ब्लॉक हो गया, क्या उसको एक सिंपल नॉस्ट्रल का स्प्रे देके आई कैन ओपन हिज नॉस्ट्रल्स रादर देन गिविंग हिम हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एवरीथिंग। सो ऑप्टिमल ड्रग एक्शन कैसे अचीव करना है एट द साइट ऑफ एक्शन इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिजाइन इन आवर डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म कौन सा डिलीवर करना है, अब हमने देखा टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल, इनहेलेशन, एरोसोल, नोवल ड्रग, इतनी सारी चीजें हैं। पर हमें बनाना कैसे है, क्या फैक्टर्स है सिलेक्ट करने के लिए मुझे टैबलेट बनाना चाहिए या इंजेक्शन बनाना चाहिए। सो इसके लिए जो हमारे पास कैटेगरीज है या जो फैक्टर्स है जो हमें दिमाग में रखना है, वो हमें दिमाग में फर्स्ट चीज रखना है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट चीज हमें क्या दिमाग में रखनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने एक सिंपल सा भी एग्जांपल दिया था, क्रिकेट के मैच में अगर किसी प्लेयर को स्प्रेन आ जाता है, पैरासीटामोल इज इफेक्टिव, बट वो काम करने में 3-4 घंटे लग जाए, उसके जगह में टॉपिकल रूट से उसको कुछ दे देता हूँ तो जल्दी काम हो जाए। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग, हम किसे दे रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेट्स से एज ऑफ द पेशेंट प्लस क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ओके, सो एज क्या है पेशेंट की, सो फॉर pediatric patients treatment is quite different, for geriatric patient treatments could be quite different। प्लस अगर पेशेंट को लेट्स से डायबिटीज है, या पेशेंट को हाइपरटेंशन है, या पेशेंट कैंसर पेशेंट है और उसको और कुछ प्रॉब्लम है, सो वो जो उनका क्लिनिकल कंडीशन है वो सारा देखते हुए हम देते। लेट्स से क्लिनिकल कंडीशन का एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस है, वी कैन नॉट गिव अ ओरल डोजेस टू हिम, हमें उसे आईवी से ही, इंट्रावीनस से ही कुछ देना पड़ेगा। सो दैट इज द सेकेंड कंपोनेंट, डोजेस फॉर्म कौन सा बना के देना है पेशेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। थर्ड अगेन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, विच इज योर थेराप्यूटिक वैल्यू। व्हाट डू वी मीन बाय थेराप्यूटिक वैल्यू, कि उस टाइम पे उस पेशेंट को कौन सी दवा कौन से मीडियम से देना बेटर है। लेट्स से सेम एग्जांपल, पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्या मैं उसे ओरल देके जल्दी इफेक्ट कर पाऊंगा या इंट्रावीनस देके जल्दी इफेक्ट कर पाऊंगा। लेट्स से पेशेंट वॉमिट कर रहा है, ठीक है, मैं उसको ओरल गोली दे देता हूँ, ओरल टेबलेट दे देता हूँ, वो वॉमिट आउट कर देगा, वुड इट बी इम्पैक्टफुल, वो उस पेशेंट को वैल्यू ऐड करेगा नहीं। उस टाइम पे मुझे कोई अल्टरनेटिव डोजेस फॉर्म उसे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। इसके बाद आता है फ्रॉम फार्मास्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू डिजायर्ड प्रोडक्ट टाइप। अब दिस इज मोर फ्रॉम अ कॉस्ट परस्पेक्टिव। अब लेट्स से मैं एक चीज का टैबलेट भी बना सकता हूँ, कैप्सूल भी बना सकता हूँ, लिक्विड भी दे सकता हूँ, सब ऑप्शंस मेरे पास है। तब मैं क्या करूँ, तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रोडक्ट मेरे लिए फायदेमंद होगा मैं उसे पुश करने की ट्राई करूंगा। लेट्स से टैबलेट मेरे लिए चीपली बन सकता है तो आई विल ट्राई टू पुश टैबलेट। अगर टैबलेट्स बहुत है मार्केट में लेट्स से, एंड मुझे टारगेट करना है खाली पीडियाट्रिक पेशेंट्स को, आपके मेरा जो कंपनी है वो पीडियाट्रिक पेशेंट का दवाई बनाएगा, तो मैं देखूंगा पीडियाट्रिक पेशेंट में टैबलेट का कोई यूज नहीं है इतना, लेट्स ट्राई टू मेक अ लिक्विड सॉल्यूशन, सिरप बनाते हैं। सो दैट इज हाउ यू टेंड टू डिसाइड फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि डिजायर्ड प्रोडक्ट टाइप मेरा क्या है। सो ये हो गए डिफरेंट फैक्टर्स दैट यू नीड टू सिलेक्ट। नाउ there are different ways to classify dosage forms, and couple of ways जो हमें पता होने चाहिए वो है, we can define it based on state, solid, liquid, gas, simple। You can define it based on route of administration, oral, topical, parenteral, simple। You can define it on site of application, let's say eye drops, मतलब आई प्रोडक्ट्स, ईयर प्रोडक्ट्स, टॉपिकल प्रोडक्ट्स, साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से।
वी कैन डिफाइन इट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, ऐसा कुछ। वी कैन डिफाइन इट बेस्ड ऑन यूजेस such as anticholinergic, anti-diabetic, anti-cancer drugs based on uses, based on sterility, स्टेरिलिटी के बेस पे स्टेराइल प्रोडक्ट्स, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन डोज एक्यूरेसी। सो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई वुड से इट इट इज यूजुअली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस का क्लासिफिकेशन, बट विल ट्राई टू गेट इनटू ऑल ऑफ देम, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। बट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेन थिंग। एक बार स्टेट देखेंगे, बट आज का पूरा जो सेशन रहेगा वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सराउंडेड रहेगा। So let's quickly try to go to state. So state में you have got what? You have got solid state. Solid state में आपके पास एग्जाम्पल हो जाते हैं टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर्स, etc. Then you have got liquid state. लिक्विड स्टेट में अपने पास एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, लोशन, एक्सेट्रा। फिर हो जाता है आपका सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में आपके पास एग्जांपल हो जाते हैं ऑइंटमेंट्स, जेल्स, पेस्ट, क्रीम्स, एक्सेट्रा। एंड फाइनली आपके पास गैसियस डोजेस फॉर्म भी होता है, गैसियस स्टेट के अंदर जो होता है। एंड इसमें जो आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं एरोसॉल्स, स्प्रेस, inhalations, etc. Here I have got couple of examples in. We'll just take a pause here. अभी तक किसी को कोई डाउट है? Any doubts, guys? कोई भी डाउट हो, क्विकली yes और no. अगर yes है तो just write your doubt. अगर no है तो no लिखो. काव्या will get into ointment and creams में क्या डिफरेंस होता है? Yeah, creams are usually your emulsions. ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन होगा, एक वैनिशिंग क्रीम होता है, कोल्ड क्रीम होता है। ऑइंटमेंट्स आर नॉट योर टिपिकल इमल्शंस। ऑइंटमेंट में जो सॉलिड कंटेंट होता है वो ज्यादा रहता है, तो जो सॉलिड कंटेंट होता है वो उसमें काफी ज्यादा रहेगा। इट्स मोर ऑफ अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जहाँ पे सॉलिड कंटेंट होगा ज्यादा। क्रीम आप जब बना रहे हो तो वहां पे आप दो लिक्विड्स को लेके बनाओगे, वहां पे सॉलिड्स यूजुअली नहीं रहेंगे, तो इसीलिए वो लिक्विड्स में आएगा। वो सेमी सॉलिड्स में ही आएगा दोनों। बट यू यू गेट योर एंड प्रोडक्ट जहाँ पे एक ग्रीसी सा क्रीम मिलेगा आपको। ऑइंटमेंट में आप देखोगे तो विस्कोसिटी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसी नो अदर डाउट्स, क्विकली गो अहेड। ठीक है, बेस्ड ऑन रूट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? सो इफ आई ट्राई टू डू इट ऑन बेस्ड ऑन रूट्स, तो बेस्ड ऑन रूट्स की जब मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट आ जाता है हमारा ओरल रूट। ओरल रूट में हमारे पास एग्जांपल्स जो भी ओरली ले सकते हैं, सॉल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर, जो भी चीज हम ओरली ले सकते हैं सब उसके अंदर फॉल करता है। देन आ जाता है हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में यूजुअली सपोजिटरीज सबसे कॉमन एग्जांपल है, उसके सिवा ऑइंटमेंट, क्रीम्स भी आती है, सॉल्यूशंस भी आते हैं, एनेमास भी आते हैं, सब आते हैं। देन आ जाता है आपका टॉपिकल। टॉपिकल में हमारे कॉस्मेटिक्स आ गए सारे, क्रीम, पेस्ट, लोशन, जेल। इसके सिवाय आजकल तो एरोसॉल फॉर्म्स वगैरह भी आते हैं।
पैचेस भी आते हैं टॉपिकल में। देन यू हैव योर पेरेंट्रल्स, जो यूजुअली इंजेक्शन हो जाते हैं आपके, सॉल्यूशन सस्पेंशन फॉर्म में आ सकते हैं, डायलिसिस के सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, वो सब पेरेंट्रल्स में आएंगे। देन यू हैव गॉट रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में आपके एरोसॉल्स आ जाते हैं, स्प्रेज गैसेस आ जाते हैं। देन यू हैव योर नेसल। नेसल यू कैन हैव सॉल्यूशन और इनहेलेशनल स्प्रेज। देन यू हैव योर आई प्रोडक्ट्स। आई प्रोडक्ट्स में सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, क्रीम्स वगैरह आ जाएंगी। एंड देन यू हैव योर ईयर प्रोडक्ट्स, इसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम्स वगैरह आ। अब ये सारे जो आपके रूट्स में से जो डोजेस फॉर्म्स आते हैं, you have got a variety of products there, you have got a variety of advantage and disadvantage। तो हम क्या करेंगे, इन सब रूट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि वी गेट टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। बट मूविंग फॉरवर्ड क्या होगा, लेट्स से हमने ओरल समझा, ओरल में टेबलेट, कैप्सूल, दैट विल बी अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। सो उसमें क्या एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, कैसे बनता है, क्या यूनिट ऑपरेशन है, क्या मशीनरी यूज होता है, वो सब अलग से टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलेंगे। बट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस डोजेस फॉर्म, डेफिनेशन उनका, उनका एडवांटेज क्या है, उनका डिसएडवांटेज क्या है, उतना समझने की हम कोशिश करेंगे, ताकि जब मैं टेबलेट आपको पढ़ाता तो यू नो ओरल डोजेस फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट इज द मिनिमम अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव गॉट। सो दैट इज देयर। सो पहले एक बार समझ लेते हैं कैसे ये काम करेगा। अल्टीमेटली हमें कहाँ जाना है, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के पास जाना है, बॉडी के अंदर जाना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग रूट से हमने क्या किया है, दवा मेडिसिन लेने की कोशिश की। यू हैव गिवन ओरल, you have given rectal, you have given topical, you have given different types of injection, you have given aerosol gases, you have given intravenous। सब ओरल दोगे वो माउथ में जाएगा, स्टमक में जाएगा, कहीं से भी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अगर वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है तो वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म चालू हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जैसे चालू हो जाएगा वो एक्सक्रीशन की तरफ जाने लग जाएगा, उसको बॉडी से बाहर कैसे निकालना है वो प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब आप रेक्टम के थ्रू जब दे रहे हो तो वो रेक्टल कैविटीज का जो आपका वेन्स है, आपका जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके थ्रू वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करने की कोशिश। इट कैन गेट आउट वाया फीसेस, इट कैन गेट इनटू टिपिकल मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस ऑल्सो। सेम अगर आप स्किन में दे रहे हो, टॉपिकल लगा रहे हो, इंजेक्शन लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इट विल गेट इनटू द स्किन एंड स्किन के थ्रू वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की कोशिश करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आपने स्प्रे लिया है, लेट्स से नेजल स्प्रे लिया है या कोई गैस लिया है सिलेंडर से, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की कोशिश करेंगे। इंट्रावीनस तो सीधा ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में मैंने दे दिया, तो वो वहां पे जाने की कोशिश। सो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे ड्रग को पहुंचाना है यूजिंग अवर डोजेस फॉर्म, दैट इज द टारगेट दैट वी वांट टू अचीव। अब एक बार वो पहुंच जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड देन मेटाबॉलिज्म चालू हो जाता है। तो ये टर्म हम हमेशा याद रखेंगे, ADME। सो एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ड्रग का टू द साइट ऑफ एक्शन, उसके बाद चालू हो गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेनली आपका लीवर में हो रहा है, मेजर ऑर्गन वो है, एंड एक्सक्रीशन हो रहा है आपका किडनीज में। सो ये दोनों प्रोसेस का काम है, जो ड्रग अंदर आ गया उसको बाहर निकालना। अब बाहर निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्रग आपके लिए हमेशा एडवांटेजियस है, आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन, आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज गोइंग टू हैव साइड इफेक्ट, इज गोइंग टू हैव एडवर्स इवेंट्स। सो उसको अवॉइड करने के लिए उसको बॉडी से बाहर निकालना काफी जरूरी है। सो दैट इज योर पाथवे। आप कोई भी रूट से ले लो, अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाना है, दैट इज अवर एजेंडा। सो दैट्स द पाथवेज टू टेक द ड्रग। अब अपने एक काम करते हैं, एक एक रूट को उठाते हैं, ट्राई टू गेट डन में डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट डोजेस फॉर्म। पहले उठाते हैं हमारा
ओरल रूट. सो ओरल रूट से जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हम देते हैं दैट आर डिजाइन टू बी टेकन बाय माउथ. यूजुअली टेक दैट बाय माउथ. एंड इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो यूजुअल केसेस में जीआईटी, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर होगा. इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यू हैव योर सॉलिड्स. सॉलिड्स में यू हैव योर टेबलेट्स, यू हैव योर कैप्सूल्स, यू हैव योर पाउडर्स. लिक्विड्स की बात करूं तो यू हैव योर सॉल्यूशंस, emulsions, सिरप्स, एक्सेट्रा. सेमी सॉलिड्स की बात करूं, सेमी सॉलिड्स भी यू कैन टेक ओरली, यू कैन टेक जेल्स ओरली. सो अब आप बोलोगे सर ये इतने सारे कैसे पढ़ेंगे. सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू स्टिक टू थ्री मेन जो हमारे हैं. लेट्स क्विकली टॉक अबाउट ओरल में. लेट्स टॉक अबाउट tablets. If we talk about tablets, tablets are unit dosage form. What we mean by unit dosage form, 1 2 3 ऐसा काउंट करके हम ले सकते हैं. 1 tablet, 2 tablet, 3 tablet. That is what we mean by unit dosage form. Tablet are compressed dosage form. ये जो बनता है ये कंप्रेशन मेथड से बनता है तो इसके लिए हम इसे कंप्रेस डोजेस फॉर्म बोलते हैं. सो टेबलेट्स आर यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म दैट आर मेड बाय कंप्रेसिंग योर एपीआई, योर एक्सिपिएंट्स टुगेदर, जिससे आपको एक टेबलेट बन के मिल जाता है. अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एडवांटेजेस, सो इसका जो मेजर एडवांटेजेस है वो डोज एक्यूरेसी है. अगर मैंने बोला 500 mg का टेबलेट है तो 500 mg डोज है. इट इज इजी टू डिवाइड. 250 mg चाहिए, 250 mg चाहिए, वो आपको इजीली मिल जाएगा. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज है कन्वीनियंस. कन्वीनियंस क्या है, मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं टेबलेट ले सकता हूँ. मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं टेबलेट ले सकता हूँ. मैं इंडिया में हूँ, वो टेबलेट अगर मुझे दुबई लेके जाना है मैं लेके जा सकता हूँ उठा के सिंपली. अगर मुझे कहीं पे भी उसको ट्रांसपोर्ट करना है मैं सिंपली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ. थर्ड जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है स्टेबिलिटी. टेबलेट्स आर वेरी स्टेबल. इट हैज गॉट मोर शेल्फ लाइफ, मोर एक्सपायरी टाइम देन यू कंपेयर टू लिक्विड्स. सो प्रॉब्लम कम होता है इस डोजेस फॉर्म के साथ, इसलिए काफी एडवांटेजेस डोजेस फॉर्म है हमारे. बट अगेन डिसएडवांटेज भी होंगे. अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. अगर पेशेंट को वॉमिट हो रहा है, पेशेंट इज पीडियाट्रिक और गिड्राटिक, तो हर बंदा टेबलेट स्वेलो नहीं कर पाएगा. दूसरा क्या है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन. मुझे एक्शन चाहिए तुरंत. मेरे लेग में स्प्रेन आया क्रिकेट खेलते टाइम, मुझे तुरंत ऐसा कुछ चाहिए कि तुरंत एक्शन हो जाए, तुरंत मैं खेलने लग जाऊं. तो ऐसा टेबलेट्स में यूजुअली देखने को नहीं मिलता. इसके सिवाय inability टू एडजस्ट डोज. अब मैंने बोला डोज एक्यूरेसी अच्छा है, अब मैं ही बोल रहा हूँ इन एबिलिटी टू एडजस्ट डोज. अब ये इसका एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ. यूजुअली आप मार्केट में जाओगे आपको पैरासीटामोल 500 mg मिलेगा या पैरासीटामोल 650 mg मिलेगा. when you're dealing with paracetamol 500 mg और आपको एक चाइल्ड को देना है, you will need to calculate dose based on his age and weight. तो आप उसको तोड़ के नहीं दे पाओगे. सो उस कंडीशन में डोज एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो वहां पे ये ड्रॉबैक के तरीके निकल के आते. सो दैट इज योर फर्स्ट डोजेस फॉर्म इन ओरल. सेकेंड जो डोजेस फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है कैप्सूल. अगेन ओरल में ही हम देख रहे हैं. सो कैप्सूल की बात करते हैं. कैप्सूल्स आर अगेन यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म. बट ये क्या होते हैं, कंप्रेस नहीं होते. यहाँ पे आप क्या करोगे,
कैप्सूल शेल होगा, यूजुअली इट इज मेड अप ऑफ जिलेटिन। उसमें आप अपना ड्रग फिल करोगे, एपीआई फिल करोगे, एक्सिपिएंट फिल करोगे एंड उसे सील करोगे। So that is how your capsule will work. Now capsule have got its advantages. Advantages क्या है? कैप्सूल का जो swallowing है वो comparatively easy होता है। If you compare it with tablets, easy swallowing होता है। It has got flexibility. अलग अलग साइज में कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं बेस्ड ऑन आपको कितना उसमें ड्रग फिल करना है, कितना एक्सिपिएंट्स फिल करना है। एंड इट हैज गॉट फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, बिकॉज जैसे ही ये जिलेटिन जेल डिसॉल्व हुआ वैसे ही आपका ड्रग कांटेक्ट में आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसका फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है व्हेन वी कंपेयर इट टू टेबलेट। सो टेबलेट इज अवर रेफरेंस स्टैंडर्ड हियर। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, सेम वही एक जो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डोज एडजस्टमेंट होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देन दीज इज अ कॉस्टली डोजेस फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंसिव मशीन्स यूज होने वाले हैं, तो ये काफी कॉस्टली हो जाए। कैप्सूल्स के साथ एक प्रॉब्लम आता है, वो है स्टेबिलिटी का इशू। सो कैप्सूल इज लेस स्टेबल देन टेबलेट, especially if you expose them to moisture or high temperature, because gelatin is sensitive to moisture, sensitive to temperature, and it causes stability issues if exposed for a prolonged time. So ये एक और आपका ओरल का टिपिकल एग्जांपल हो गया। नाउ दिस, व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस, क्यों हम ये देख रहे हैं? बिकॉज दिस आर द डोजेस फॉर्म जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर। यू विल सी, मैं आपको कैप्सूल्स पढ़ाऊंगा 2-3 सेशन, टैबलेट्स पढ़ाऊंगा 3-4 सेशंस। सो वही चीजें मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो ओरल कैटेगरी में हमारा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, वो है लिक्विड। व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड डोजेस फॉर्म में हमारा सब कुछ आ गया। सॉल्यूशन आ गया, सस्पेंशन आ गया, इवन सिरप्स आ गए, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। जो हम लिक्विड फॉर्म में स्वेलो करने वाले हैं ओरल रूट से, वो सारे लिक्विड्स को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। When we talk about liquids, they have got their bunch of advantages. सबसे बड़ा एडवांटेज है ease of swallowing। एक टेबल स्पून ले लो, सिंपली छोटे बच्चे से लेके जीडियाट्रिक पेशेंट सब ले सकते हैं। दे हैव गॉट फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन सिंस दे आर इन लिक्विड फॉर्म। उनका जो प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन का या जिलेटिन डिसॉल्विंग का, वो नहीं होगा। सो लिक्विड्स आर एब्जॉर्ब मोर क्विकली देन सॉलिड डोजेस फॉर्म्स, एंड इसके कारण उनका एक्शन जल्दी चालू हो जाता है। यहाँ पे एक जो बहुत अच्छा एडवांटेज हमें मिलता है वो डोज एडजस्टमेंट का मिलता है। सो लिक्विड्स कैन बी इजीली एडजस्टेड टू प्रोवाइड डिजायर्ड डोज। छोटा चम्मच ले लेंगे अगर यू हैव गॉट अ पीडियाट्रिक पेशेंट, 8 ml लेना है, 10 ml लेना है, हम वी कैन मेजर दोस थिंग्स। So that is possible there. Then if I talk about disadvantages, again it has got its set of disadvantages. अगर मैं disadvantages की बात करूं, तो पहला इशू आता है स्टेबिलिटी का। सिंस लिक्विड फॉर्म में है, तो you will require either you need to keep it in cool places or refrigerated, but इनका स्टेबिलिटी सॉलिड डोजेस फॉर्म से फॉर श्योर कम होता है। डोज एक्यूरेसी इज अ प्रॉब्लम। अब होगा क्या, हो सकता है इन वन फैमिली दे आर यूजिंग बिगर स्पून, इन अनदर फैमिली दे आर यूजिंग स्मॉलर स्पून। कोई ऐसा मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके नहीं देता है, तो 1-2 ml का डोज का ऊपर नीचे काफी कॉमन होता है। सो डोज एरर होते हैं। इसके सिवाय सिंस दिस इज इन लिक्विड फॉर्म, जब भी पेशेंट इसको लेगा, पेशेंट विल फील अ टेस्ट एंड फील अ ऑर्डर। तो अगर टेस्ट अच्छा नहीं है, ऑर्डर अच्छा नहीं है, तो पेशेंट विल नॉट कंप्लाई, दे विल क्रिएट अ फस ऑफ इट कि नहीं लेना एंड ऑल दो स्टफ। वो सारा इश्यूज इस डोजेस फॉर्म पे देखने को मिलता है।
सो दैट इज ऑल ऑन योर ओरल। तो 3 डोजेस फॉर्म हमें डिटेल में जीपेट प्रिपरेशन के लिए पढ़ने हैं, टेबलेट, कैप्सूल एंड लिक्विड्स। देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट विंडो, वो ले लेते हैं। व्हाट इज ड्रग एडजस्टमेंट? ड्रग का डोज एडजस्टमेंट का बात हो रहा है, सो कैप्सूल्स के अंदर डोज एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, सो दैट इज अ ड्रॉबैक देयर। जस्ट टेक अ पॉज हियर, किसी को कोई और डाउट है? एनी अदर डाउट्स गाइस? क्विकली यस और नो। अगर कोई डाउट नहीं, आई सी नोस। सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू क्विकली सॉल्व वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रखा है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े। गुड काव्या, गुड हिंदा। आई थिंक काफी लोगों ने, हाँ या इट्स अ कंफ्यूजिंग वन। जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ना, सर ए और सी में नहीं समझ आ रहा है, इट्स अ कंफ्यूजिंग वन, यू नीड टू मेक दैट जजमेंट। So Vedant, you are saying rapid onset is not possible in oral doses form because drug will go into metabolism. So onset of action is not dependent on metabolism. Onset of action is dependent on absorption. कितना जल्दी absorption होगा. So I will tell you just one word. Let's say you are taking a oral liquid. Will your rational stand still true there? ठीक है, let's quickly try to get this solved. Which of the following is a disadvantage of oral doses form? Oral doses form में क्या disadvantage आएगा? Rapid onset of action is a disadvantage if you are taking tablet, if you are taking capsule. Let's say you are taking liquid, तो ये एडवांटेज आपका डिसएडवांटेज चला जाएगा। लेट्स से यू आर टेकिंग अ सिरप, वहां पे रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता टेबलेट, तो आई विल वुड हैव सेम कि ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। बट यहाँ पे क्या लिखा है? ओरल, तो ये 100% करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सो ये आंसर क्या है? ये 50-50% है। सो इसको हम बोलेंगे 50-50% ये सही हो सकता। सो ये वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम ऑप्शन को ऐसा फ्रेम करते हैं कि ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो। क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, डिसएडवांटेज बताना है, बट ऑप्शंस को डिजाइन किया जाएगा ऐसे कि आपको वो आंसर सिलेक्शन फंसा दे। सो अगर आप जल्दी जल्दी में कर रहे होगा ना, सीधा ऑप्शन ए निकाल कर निकल लोगे, बट डोंट डू दैट। जीपीटी इज अ ट्रिकी एग्जाम। वो ऑप्शंस को मैनिपुलेट करते हैं, दे ट्राई टू प्ले विद द ऑप्शंस। इतना क्लोज ऑप्शन देंगे और क्वेश्चन में ऐसा छोटा सा ट्विस्ट लगाएंगे कि आंसर चेंज हो जाए। इजी टू सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं यार, इजी टू सेल्फ एडमिनिस्टर तो एडवांटेज हो गया, यहाँ तो डिसएडवांटेज की बात है, सो ये तो हो ही नहीं सकता। लिमिटेड बायो अवेबिलिटी। नाउ व्हेन वी से बायो अवेबिलिटी, बायोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? पेरेंट्रल्स की होती है। क्या टेबलेट की बायोबिलिटी पेरेंट्रल्स के नजदीक आ सकती है? नहीं आ सकती। इट्स लाइक 35%, 40। लिक्विड्स की आ सकती है, लिक्विड्स की 50 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो दिस इज लाइक 100% करेक्ट फॉर ऑल दी ओरल डोजेस फॉर्म। ओरल रूट से कुछ भी जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगा। और वो फर्स्ट पास के अंदर जाएगा तो वो हमेशा 100 से बहुत कम रहेगा। सो दिस इज लाइक 100% आंसर। डोंट स्टॉप हियर ऑल्सो, रीड द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो।
कैन कॉज स्किन का लोकल इरिटेशन, नहीं स्किन का तो कुछ है ही नहीं इसमें यार, ओरल है। सो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए, यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन सी। यहाँ पे 50-50 था तो इसको कर देते क्रॉस। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सो डू यू गाइज गेट ऑप्शन सी सही आंसर कैसे है? एवरीवन जिसने ए सिलेक्ट किया था, इम्पोर्टेंटली फॉर देम। जिनने बी सिलेक्ट किया था, आई एम वेरी श्योर आपने वो डिसएडवांटेज को एडवांटेज पढ़ा होगा तभी आपने किया। पर जिनने ए सिलेक्ट किया था ना, उनने एक ही गलती की, उनने क्वेश्चन फटाफट सॉल्व की। अगर उनने क्वेश्चन को शांति से पढ़ा होता, एलिमिनेशन किया होता, तो वो 100% ए और सी में कंफ्यूज होते। अगर आप ए और सी में कंफ्यूज हुए मतलब आपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया। अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो हो सकता है वो 50-50 वाले परसेंट जो मैंने बोला आपको ट्विस्ट करने के लिए, जो एग्जामिनर ने सेट किया है 50-50 वाला ऑप्शन, उसमें फंस गए। जिनने सी सिलेक्ट किया दे हैव गिवन इट अ थॉट, एंड दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच एवरी क्वेश्चन व्हाइल यू आर सॉल्विंग इट। ये अप्रोच आप लेके चलोगे ना, तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके हाई चांसेस आप उसका सही आंसर फाइंड कर लोगे, बिकॉज एमसीक्यू इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आंसर आपके सामने है। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी उठाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे लिए है ओरल के बाद, वो है टॉपिकल। वी टॉक अबाउट टॉपिकल। टॉपिकल क्या है? जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से हम डिलीवर कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल अगर मैं सॉलिड के लेता हूँ तो आपके पास पाउडर आ जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पाउडर जो स्किन पे लगा सकते हैं। समर्स में भी वी यूज लॉट ऑफ पाउडर्स, एंटीसेप्टिक पाउडर्स। फिर आ जाते हैं लिक्विड। लिक्विड में देयर आर स्प्रे, परफ्यूम्स को ले लेते हैं, लोशंस को ले लेते हैं। देयर आर सॉल्यूशन, इरिगेशन सॉल्यूशंस, क्लीनिंग सॉल्यूशंस वगैरह जो आते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड्स में अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो जेल्स ले लेते हैं, पेस्ट, ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा। सो ये सारे एग्जांपल्स अपने लिए यहाँ पे आ जाए। इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिकल्स, सो सबसे पहले हम उठाते हैं इसमें ऑइंटमेंट उठाते हैं। वी टॉक अबाउट ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है? इट्स अ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है जो टिपिकली आपका एपीआई प्लस एक बेस, ऑयल बेस, यूजुअली पेट्रोलियम जेली या पेट्रोलियम या आपका जो लेनॉल आता है, वैक्स आता है, वैसी चीजों को लेके हम ऑइंटमेंट बनाते हैं। सो ऑइंटमेंट का जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है? इट हैज गॉट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। सो ऑइंटमेंट्स में यूजुअली कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग काफी हाई रहता है। प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट टाइम, सो सिंस इसका विस्कोसिटी थोड़ा अच्छा रहता है, सो ये स्किन पे काफी देर तक रहता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टिक रहता है। तो इसका जो एफिकेसी है या जो एक्टिव टाइम इसको मिलता है अपना एक्शन दिखाने के लिए, वो ज्यादा होता है। इसके बाद इट हैज गॉट गुड ऑक्लूसिविटी। व्हाट वी मीन बाय ऑक्लूसिविटी, ये एक बैरियर जैसा होता है जो मॉइस्चर के लॉसों को रोकता है। सो स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है उससे बाहर जाने से रोकेगा, और बाहर से पानी या मॉइस्चर को स्किन के अंदर जाने से रोकेगा। सो दैट इज अ टिपिकल एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑयल। If we are talking about disadvantages, डिसएडवांटेजेस का क्या? टेक्सचर बहुत ऐसा रफ सा होता है, ग्रीसी सा होता है। ग्रीसी टेक्सचर होता है तो पेशेंट्स को अच्छा नहीं लगता वो जब लगाते हैं। सो एंड अगर कपड़े वगैरह पे लग जाए तो स्टेन छोड़ देता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम है। हाँ, जो उसका स्प्रेडिंग एबिलिटी है वो काफी पुअर है, जिसके कारण इजीली स्प्रेड नहीं होता है ओवर लार्ज एरिया ऑफ स्किन, एंड इट हैज गॉट पोटेंशियल ऑफ इरिटेशन टू द स्किन। यूजुअली स्किन का जो भी प्रोडक्ट है, इट हैज गॉट सम पोटेंशियल टू इरिटेट द स्किन। लेट्स से पेशेंट्स में डेवलप स्किन इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन,
आइदर यू आर यूजिंग अ ड्रग जिसके कारण ये हो रहा है, या कोई एक्सीडेंट के कारण ये हो रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम विद टॉपिकल। तो टॉपिकल में स्किन का कुछ ना कुछ इशू हमेशा देखने को मिलेगा आपको, कोई भी टॉपिकल प्रोडक्ट आप यूज करो। Yeah, then we are dealing with creams, very very important. So creams are again your semi solid dosage form. Usually आपका API को मिक्स करते हैं इन सम लिक्विड्स। यूजुअली आपका API भी लिक्विड होगा, तो इट कुड बी ऑयल इन वाटर इमल्शन और water in oil emulsion. So your cold cream is a example of cream, your vanishing cream, your shaving cream, all those are examples of cream. अब क्रीम के साथ जो सबसे अच्छी चीज है ना, क्रीम के साथ जो सबसे बेस्ट है, एडवांटेज जो मैं क्रीम का बोलता हूँ, इजी टू स्प्रेड। स्किन पे इजीली स्प्रेड हो जाती है, एकदम स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देती है, मतलब एकदम नॉन ग्रीसी एक्सपीरियंस देती है। एंड जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन भी काफी क्विकली हो जाता है। सो इट हैज गॉट अ क्विक एब्जॉर्प्शन। देन आ जाता है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है, इसमें ड्रग का जो कंसंट्रेशन है, ड्रग कंसंट्रेशन काफी लेस रहता है। इट्स मोर अबाउट एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक्स। शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। विल सी, आपने अभी क्रीम लगाया, थोड़ी देर बाद क्रीम गायब हो जाए, सो इट हैज गॉट अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एंड अगेन सेम पोटेंशियल ऑफ इरिटेशन इसके अंदर भी आपको देखने को मिले। सो दैट इज योर क्रीम्स। क्रीम्स के बाद एक जो दूसरा टॉपिकल फॉर्मुलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज योर जेल्स। सो जेल्स आर अगेन योर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जहाँ पे टिपिकली आप अपने एपीआई को मिक्स करते हो एक जेल बेस के साथ। जेल बेस कुड बी वाटर बेस्ड और इट कुड बी अल्कोहल बेस्ड। इस जेल बेस के साथ आप मिक्स करोगे अपने एपीआई को, एंड यू विल गेट अ जेली या जेली लाइक स्ट्रक्चर। आप the advantage of using this is you have got a fast absorption, you will get a very fast ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा। जेल के अंदर यू विल सी अ कूलिंग इफेक्ट। सो सम जेल्स हैव अ कूलिंग इफेक्ट दैट कीप्स योर स्किन सूथ। इन्फ्लेम्ड स्किन जो होता है उसको सूथ करने में काम आता है। जेल कैसा होता है, अच्छा सा दिखता है, इट्स ट्रांसपेरेंट। आप फेस पे रखोगे, फेस पे आपको ग्लो दिखेगा। सो ट्रांसपेरेंट रहते हैं यूजुअली, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड लुक टू कस्टमर्स दैट वी आर डीलिंग विद। डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, जब आप जेल रखोगे, वो स्किन का जो भी हाइड्रेशन है उसको सक कर लेगा। सो इट इट हैव गॉट अ ड्राइंग इफेक्ट। आपका स्किन जो होगा वो ड्राई हो जाएगा उसके अंदर। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इसमें लो रहेगा, एंड यू हैव गॉट पोटेंशियल फॉर इरिटेशन। सो दैट इज अबाउट जेल्स। विल जस्ट टेक अ पॉज हियर, किसी को कोई भी डाउट है, यस और नो क्विकली। I see no doubts coming up, so let's quickly take a question. Question solve कर लेते हैं। चलिए आंसर्स में चार्ट विंडो।
ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। आई होप सबने मैंने जो सिखाया था उसी हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की है। Okay, which of the following is an advantage of topical dosage form? टॉपिकल डोजेस फॉर्म का एडवांटेज क्या है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये अगेन आई विल मार्क दिस इन 50-50 कैटेगरी। नो पोटेंशियल फर्स्ट स्किन इरिटेशन तो ये होगा ही, ये एडवांटेज में नहीं डिसएडवांटेज में आएगा। कैन बी यूज टू ट्रीट सिस्टमिक डिजीज। नहीं, सिस्टमिक डिजीज के लिए नीड टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेट्स से टॉपिकल्स यूजुअली फंगल इन्फेक्शन वगैरह के लिए काफी यूज होता है। स्टिल अगर आप देखोगे पेशेंट्स को डॉक्टर एंटी फंगल टेबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर टू हार्ड रीच एरियाज, विच इज अ वेरी गुड रैशनल। इजी टू एडमिनिस्टर टू हार्ड रीच एरियाज, इसका मतलब क्या हो? लेट्स से मुझे लेग में कहीं पेन है एंड आई टेक अ टेबलेट। वो टेबलेट क्या करेगा, वो पूरे बॉडी में जाएगा, बट हो सकता है मेरे लेग तक ना जाए। सो हार्ड टू रीच एरियाज। लेट्स से कहीं पे मुझे इन्फेक्शन हो गया है, टो के साइड में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां पे कुछ पहुंचना इजी नहीं है, बट टॉपिकल अगर मैं एंटीबायोटिक वहां पे लगाऊंगा तो वहां पे वो काम करेगा। सो इजी टू एडमिनिस्टर टू हार्ड रीच एरियाज एक ऐसा चीज है जो खाली टॉपिकल में ही पॉसिबल है। ठीक है, सो ये 100% किसका केस है? ये टॉपिकल का केस। बट इफ यू सी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, let's say if I say I have got पेरेंट्रल, के सीधा सीधा एक्शन चालू। अब टॉपिकल में क्या होगा? टॉपिकल में अगर मैं लेट्स से फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का कोई एंटी फंगल देता हूँ, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले स्किन के पूरे बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा एंड देन इट विल गो टू योर सिस्टमिक सर्कुलेशन टू गेट योर इम्पैक्ट। सो यहाँ पे अगेन जो स्टूडेंट्स ने ए और डी में कंफ्यूज किया, वो लोग एक तरीके से पहुंच गए, बट क्वेश्चन सेटर के माइंडसेट से वो फंस गया। आई नो काफी लोगों ने ये सिलेक्ट किया। आई थिंक काव्या, देवांशी और 2-3 स्टूडेंट्स और हैं जिनने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है, नहीं तो काफी लोगों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया, आई थिंक उनने एडवांटेज को डिसएडवांटेज पढ़ लिया, इसीलिए ऑप्शन बी पे पहुंच गए। बट आई विल पिक ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर हियर। easy to administer to hard reach areas is the selling point of your topics. Now जिन जिन ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया था, डू यू एग्री? आप लोगों को समझ आया ये कैसे ऑप्शन ए है? क्विकली यस और नो? शिट, आई सी यस कमिंग अप, व्हिच इज गुड। ये फर्स्ट सेशन है गाइस, एंड आई हैव पर्पसली पुट इन क्वेश्चंस जहां पे आई एम ट्राइंग टू प्ले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा नहीं देखने को मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये क्वेश्चंस मैं आपके उस माइंडसेट्स को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर्स जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आंसर आप देख रहे हैं। ठीक है, मैंने वो ऑप्शन ए ही क्यों रखा, क्योंकि पहली चीज अगर आप वो पढ़ोगे तो देर इज हाई इम्पैक्ट कि आप बाकी 3 ऑप्शन को बायसली जज करोगे। तो जो बायस होता है ना, उसको छोड़ के हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सो आप देखोगे आई एम ट्राइंग टू सेल यू ऑप्शन ए, वहां पे ऑप्शन ए रख के एज अ पेपर सेट आई एम ट्राइंग टू सेल यू दैट ऑप्शन। सो इट्स अ माइंड गेम ऑल्सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व जीपेट के क्वेश्चन, स्नाइपर के क्वेश्चन, यू आर ट्राइंग टू प्ले विद दैट ऑल्सो। या दैट इज द प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू डू। सो ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अपना ओरल हो गया, टॉपिकल हो गया, 2 इंपॉर्टेंट हमने कवर कर ली। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट डोजेस फॉर्म के पास, विच इज अवर
पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म क्या है? इट इज सिंपल योर इंजेक्शंस, जो इंजेक्शन हम पेशेंट्स को देते हैं, दैट इज योर पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। अगेन इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, ये ऐसा डोजेस फॉर्म है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। सो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचता है उसका कंसंट्रेशन काफी कम कर देता है। यहाँ पे वो नहीं होता, इसलिए हमें एंटायर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिल जाता है ना। इसको डिलीवर करने के लिए आपको एक इंजेक्शन चाहिएगा, यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट। एंड इसका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो यूजुअली 100% होता है, जो देते हो वो पहुंचता है। ये यूजुअली हम पेशेंट्स को इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर ही देते हैं, यूजुअल कंडीशंस में हम इसे अवॉइड करते हैं। अब इसके अंदर भी यू हैव गॉट डिफरेंट रूट्स, यू हैव गॉट इंट्रावीनस रूट आईवी, यू हैव सबक्यूटेनियस रूट एससी, यू हैव गॉट इंट्रामस्कुलर रूट आईएम, यू हैव गॉट इंट्राडर्मल रूट का काफी है। हम यहाँ पे दिस आर ओनली द एग्जांपल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेंट्रल्स इसको काफी डिटेल में देखेंगे। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सॉलिड्स में इसमें बहुत एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको। यूजुअली पाउडर्स आते हैं जिसको आप वाटर फॉर इंजेक्शन में डाल के इंजेक्शन बना लेते हो और पेशेंट को डिलीवर करते हैं। यूजुअली यहाँ पे आपको लिक्विड्स में बहुत एग्जांपल देखने को मिलेंगे। लिक्विड में यू विल हैव योर सॉल्यूशंस, यू विल हैव योर सस्पेंशंस, यू विल हैव योर इमल्शंस, एक्सेट्रा। सेमी सॉलिड्स में भी आपको काफी कम एग्जांपल मिलेंगे, यूजुअली जेल्स आते हैं, डिपोट जेल्स होते हैं, इंसिशन रख के वहां पे जेल लगा के उसको छोड़ देते हैं, दैट इज द ओनली पैरेंट्रल सेमी सॉलिड। तो काफी यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो इसमें हम जो बात करेंगे वो यूजुअली हम बात करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन की। सो इफ आई टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस की जब मैं बात करता हूँ, यूजुअली सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज अ क्लियर लिक्विड, क्लियर लिक्विड होगा विच इज यूजुअली मेड अप बाय यूजिंग योर एपीआई प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या हो सकता है? आपका वाटर हो सकता है और ऑयल हो सकता है और कोई नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, सच ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक रख लो इसको। जैसे कि आप अल्कोहल बेस्ड भी ले सकते हो। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, टॉक अबाउट टिपिकल एडवांटेजेस, इट हैज गॉट फास्टर onset of action, can be administered by a variety of route। सॉल्यूशंस को आप कहीं से भी दे सकते हो, आईवी दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर दे सकते हो, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, सब जगह से आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, डिपेंड आपको कैसा इफेक्ट चाहिए। बाकी जो आपके पेरेंट्रल्स होंगे वो आप सब जगह से नहीं दे पाओगे, बट दिस इज वन जो दे सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो द प्रॉब्लम इज, अगर आपका ड्रग का सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस है, तो आप उसको वाटर में, ऑयल में या नॉन ऑर्गेनिक्स में सॉल्युबलाइज नहीं कर पाओगे। और ऑर्गेनिक्स यूजुअली हम हाई कंसंट्रेशन में या ज्यादा क्वांटिटी में पेशेंट्स को एडमिनिस्टर कर नहीं सकते, बिकॉज इट हैज गॉट इट्स ओन साइड इफेक्ट्स, रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। सिंस हम इसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हमें कंटामिनेशन को जीरो रखना पड़ता है, स्टेराइल मेंटेन रखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी कंटामिनेशन होगा तो आपका पूरा प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, आपके पूरे प्रोडक्ट को आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। देन इट हैज गॉट अ वेरी टिपिकल एडवर्स इवेंट विच इज इंजेक्शन साइट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इंजेक्शन साइट रिएक्शन में जहाँ पे आपने इंजेक्शन दिया वहां पे कुछ स्किन इरिटेशन हो जाएगा, वहां पे कुछ स्किन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा या ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलेगा। इंजेक्शन से रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट आपको वहां पे यूजुअली देखने को मिलेगा। सो दैट इज अबाउट योर सॉल्यूशंस। फिर आ जाते हैं हम अपने सस्पेंशन पे। सस्पेंशंस आर यूजुअली योर बाइफेजिक,
बाइफेजिक लिक्विड। बाइफेजिक लिक्विड का मतलब क्या है, इसमें आपको सॉलिड प्लस लिक्विड देखने को मिलेगा, बट सॉलिड का जो साइज होगा वो बहुत छोटा रहेगा एंड वो सस्पेंडेड होगा लिक्विड में, जिसके कारण, सस्पेंडेड होने के कारण हम इसको बोलते हैं सस्पेंशन। इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस फॉर दिस, सिंपल है, इट हैज गॉट लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। का एक्शन का ड्यूरेशन काफी लॉन्गर देखने को मिलता है। यू कैन एडमिनिस्टर इट बाय वेराइटी ऑफ रूट्स एंड जो हमारा सॉल्यूशन का प्रॉब्लम था पुअरली सॉल्यूबल ड्रग्स का, वो ये सॉल्व कर देता है। तो पुअरली सॉल्यूबल ड्रग्स के आप सस्पेंशन बना के एडमिनिस्टर कर सकते। नाउ आता है डिसएडवांटेज की बात। तो देयर आर सम स्टेबिलिटी इश्यूज। स्टेबिलिटी इश्यूज क्या है, यहाँ पे सॉलिड क्या था, सस्पेंडेड था। अब वो सेटल हो जाता है नीचे, तो आपको शेक वेल बिफोर यूज जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। रिस्क ऑफ क्लॉगिंग, क्लॉगिंग ऑफ व्हाट, क्लॉगिंग ऑफ इंजेक्शन। आपका इंजेक्शन क्लॉग कर जाएगा बिकॉज सस्पेंशन में सॉलिड है। इंजेक्शन का जो निडल होता है बहुत ही माइन्यूट होता है, तो वहां पे क्लॉग हो जाएगा अगर थोड़ा भी बड़ा सा पार्टिकल साइज आ। एंड पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन ब्रेकिंग। सस्पेंशन ब्रेकिंग क्या होता है, सस्पेंशन ब्रेक होके लिक्विड जो है और सॉलिड जो है वो अलग हो जाएगा एंड आपको दो बे फेज मिल जाएंगे। जो आपका बाई फेज था वो सेपरेट हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन। देन आता है आपका इमल्शन। अगेन इमल्शन क्या है, इमल्शन भी आपका बाइफेजिक लिक्विड है, जिसमें आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे, दो लिक्विड को मिक्स करोगे, इनमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करोगे, सच एज ऑयल एंड वाटर। इन दो को मिक्स करके आप एक फॉर्मुलेशन बनाओगे, उसको आप बोलोगे इमल्शन। इमल्शन को इमल्शन बनाने के लिए एक स्पेशल एजेंट चाहिए रहता है जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। सस्पेंशन में आपको एक सस्पेंडर चाहिएगा या सस्पेंशन एजेंट चाहिएगा। वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस, सेम, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स को ये इजीली बना सकते हो आप इससे। एंड अगर आपका ड्रग लिपोफिलिक है, व्हाट डू वी मीन बाय लिपोफिलिक, लिपिड लविंग है, तो जो हमारे लिपिड में सॉल्युबलाइज होता है, वैसे ड्रग्स को भी आप इससे इजीली डिलीवर कर सकते हो। बट लिपिड वाले जो ड्रग्स होते हैं आप उसको यूजुअली वाटर के अंदर डिलीवर नहीं कर सकते, बट सिंस इमल्शन के अंदर ऑयल आता है तो आप उसको डिलीवर कर पाते हो काफी इजीली। देन आ जाते हैं आपके डिसएडवांटेज। अगेन यू विल नीड शेकिंग हियर, बस सेटलिंग का इशू इसमें भी रहता है। ऑयल सेटल हो जाएगा या वाटर ऊपर आ जाए कुछ भी। क्लॉगिंग ऑफ निडल इसमें भी होता है बिकॉज इसका भी जो विस्कोसिटी होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। इन इमल्शन के अंदर कॉन्टामिनेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं बिकॉज इमल्शन बनाने के लिए यू नीड टू डिप समथिंग, जिससे आप इसको हिलाओगे अच्छे से, यू ट्राई टू मिक्स इट वेरी वेल, तो उसके कारण ये आपको देखने को मिलता है। जस्ट टेक अ पॉज हियर, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। क्लॉगिंग मीन्स फ्लो को ब्लॉक कर देगा। सो लेट्स से आपको इंजेक्शन दे रहे हो, उसमें आके एक पार्टिकल अटक जाएगा, वो इंजेक्शन बाहर नहीं आ पाएगा, जैसे पाइप क्लॉग हो जाता है, वाटर फ्लो नहीं करेगा। सो क्लॉगिंग ऑफ निडल होगा। एनी अदर डाउट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी को भी? एनी वन क्विकली यस और नो, आगे चलते हैं फिर। कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, लेट्स क्विकली सॉल्व वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज अ इजियर वन गाइस। Okay, let's solve this. Which of the following is advantage of parenteral dosage form? Easy to self administer, नहीं भाई, इंजेक्शन खुद नहीं ले सकते। नॉन इन्वेसिव, नहीं। इन्वेसिव है बिकॉज यू आर इंजेक्टिंग समथिंग इन द स्किन। नॉन इन्वेसिव मतलब स्किन में कुछ इन्वेजन नहीं हो रहा है, कोई बॉडी पार्ट पे नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, बिल्कुल सही है, जैसे ही आप देंगे वैसे ही एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, 100% सही। लॉन्गर शेल्फ लाइफ देन ओरल डोजेस फॉर्म, नहीं। ओरल डोजेस फॉर्म आप किससे कंपेयर करो, लेट्स से अगर आप टेबलेट से कंपेयर कर रहे हो, यूजुअल एक्सपायरी डेट्स 2 to 3 years देखने को मिलेगी। अगर आप एक आईवी को कंपेयर करोगे तो यूजुअली 6 मंथ से 1 year देखने को मिलेगी। सो शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होता है यूजुअली, बिकॉज कंटामिनेशन के रिस्क ज्यादा रहता है, सो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। एनीबॉडी जिसको डाउट हो इस क्वेश्चन में? ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स ने आर एक्चुअली चूजन ऑप्शन डी। आई एम सरप्राइज विद दैट। उन लोगों को क्लियर है क्यों ऑप्शन डी नहीं सही है। इट्स 100% रॉन्ग, 50-50 वाले कैटेगरी में भी नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज रेक्टल रूट। रेक्टल रूट के प्रिपरेशन आर यूजुअली गिवन फ्रॉम रेक्टल कैविटी, इसके लिए इसको रेक्टल रूट बोल रहे हैं। यूजुअली यहाँ से हम कौन से ड्रग देते हैं जो जीआईटी में इरिटेशन क्रिएट करते हैं, एंड जिसका ट्रीटमेंट एरिया क्या है, टूवर्ड्स योर रेक्टल रूट है, जहाँ पे लोकल और सिस्टमिक एक्शन दिया जाएगा। दिस विल ऑल्सो अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होने वाला है। if we talk about examples, अगर हम solids की बात करें तो you have got a very typical example which is suppositories। अगर हम liquids की बात करें, we have got a very typical example which is your enema। and अगर हम semi solids की बात करें, we have got gels, rectal gels आते हैं। तो ये 3 typical example है अगर हम rectals की बात करते हैं। So if we talk about suppositories first, very good question। हाँ, मैदान पूछते हैं सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड्स, यस आई 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 एग्री विद दैट। अगर मैंने सॉलिड्स बोला है तो दैट्स इनकरेक्ट। ठीक है, सो विल कीप एट दैट एज सेमी सॉलिड्स। फाइनल प्रोडक्ट्स को हम सॉलिड्स बोल लेंगे, बट इट विल फॉल अंडर सेमी सॉलिड्स। क्या कुछ रेक्टल में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, फिर आई विल से
ऑन अ थियोरेटिकल बेसिस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, और जो होता है दैट इज वेरी लेस परसेंटेज टू बी काउंटेड फॉर। सो सपोजिटरीज की अगर मैं बात करूंगा तो इट इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विच इज इंसर्टेड इनटू रेक्टम, जहाँ पे इनका काम क्या होता है, ये आइडियली सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, देन ये मेल्ट होती है, मेल्ट होके ये ड्रग रिलीज कर। सो दैट इज हाउ यूजुअली इट विल वर्क। If I talk about typical advantages of this form, सबसे बड़ा एडवांटेज है गुड बायो अवेलेबिलिटी। सपोजिटरीज आर एब्जॉर्ब फ्रॉम रेक्टल म्यूकोसा, जिसके कारण इनका बायोअवेलेबिलिटी काफी अच्छा रहता है। देन यू हैव गॉट पेशेंट्स जिनको swallow नहीं करना पड़ता, उनके लिए ये रूट सबसे अच्छा है, ठीक है। एंड देन यू हैव गॉट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये अवॉइड कर देती है, जिसके कारण इनका एबिलिटी अच्छा होगा। सो दैट आर द एडवांटेजेस। इफ आई टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस, सो डिसएडवांटेजेस में पोटेंशियल ऑफ लीकेज। सो पोटेंशियल ऑफ लीकेज क्या है, यहाँ पे जब ये मेल्ट हो जाता है तो देर आर हाई चांसेस इट विल कम आउट ऑफ द रेक्टल कैविटी एंड विल लीक इनटू द रेक्टल कैविटी, जिसके कारण क्या होगा, आपका डोजिंग में डिस्टर्ब हो जाएगा एंड आपको दूसरा अनकंफर्टेबल भी ये कर देगी। सो दीज आर यूजुअली अनकंफर्टेबल ऑल्सो। इसके सिवाय लिमिटेड ड्रग सॉल्युबिलिटी। सो होगा क्या, दीज आर नॉट सुटेड। अगर आपको सपोजिटरी बनाना है तो यूजुअली आप जो ड्रग्स लोगे उनका सॉल्युबिलिटी, जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए। अगर उनका सॉल्युबिलिटी पुअर है तो उनका आप अगर सपोजिटरी बनाने का कोशिश करोगे तो इट इज नॉट दैट ग्रेट। सो दैट इज सपोजिटरीज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर एनेमास। एनेमा क्या है, इट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो आप यूजुअली रेक्टल रूट में एडमिनिस्टर करते हो। एंड एनेमास को आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ एनेमास जो आपको मार्केट में मिलेंगे, दोज आर आइदर टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, एंड यूजुअली ये कॉन्स्टिपेशन कौन सा होता है, शॉक या सर्जरी रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन। सो वहां पे आप एनेमास को यूजुअली देखोगे यूज होगा। so there's a question in the chat window, वो ले लेते हैं पहले। सर ऑन विच फैक्टर विल इट डिपेंड विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म विल अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऐसा कोई भी डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है जिससे आप बता सको कि ये रूट का फर्स्ट पास होगा या ये नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ पे नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जो चीज सीधा आपके ब्लड में जाएगी वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ठीक, अब आईवी इंजेक्शन जब आप दे रहे हो, सीधा आप ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे नहीं होगा। बट लेट्स से रेक्टल रूट है, रेक्टल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बट सिंस रेक्टल रीजन के स्किन से अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो इट इज स्किन अगेन, तो वहां पे 2-4% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है, बट ओरल जैसा नहीं होगा कि 50% मेटाबोलाइज हो जाए। सो दैट इज नॉट द केस। सो यूजुअली रेक्टल रूट को हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वहां पे नहीं होता। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बट ऐसा कोई डिटरमाइनिंग फैक्टर के मैं आपको बोल दूं ये एक चीज है जिससे आप पता कर सकते हो, वैसा नहीं है कुछ। सो लेट्स टॉक अबाउट एनेमाज एडवांटेजेस। एनेमा का जो एडवांटेजेस है, सबसे पहला, इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड, इट कैन डिलीवर ड्रग टू लोकल एरिया। सो एनेमा जो है यूजुअली इट इज यूज टू डिलीवर ड्रग टू रेक्टल एरिया और लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट।
एंड जहाँ पे ओरल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है वहां पे एनेमा देके आप पेशेंट को रिलीव कर सकते हो। देन आता है आपका डिसएडवांटेज। इज टॉक अबाउट डिसएडवांटेज, इट हैज गॉट पोटेंशियल ऑफ डिस्कम्फर्ट। पेशेंट्स के लिए डिस्कम्फर्टिंग होता है। सम पेशेंट फाइंड्स एनेमा वेरी अनप्लेजेंट टू यूज। इरिटेशन हो सकता है इन द रेक्टल स्किन विच इज वेरी डेंजरस। एंड यू हैव गॉट पोटेंशियल ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसके कारण इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। सो इट हैज गॉट इट्स सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। I'll just take a pause here. किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? कोई भी क्वेश्चन है? इतनी यस और नो? ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। एक क्वेश्चन ले लेते क्विकली। क्विकली गाइस। ओके, आई सी मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया है। सो लेट्स क्विकली डिस्कस दिस। सो you are learning the technique to solve. Which of the following is the disadvantage of rectal doses for रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन? ये तो एडवांटेज हो गया, सीधा ही क्रॉस कर देते। डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, ये एक 50-50 हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। सो आई विल कीप इट। लिमिटेड शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ इज वेरी कंपैरेटिव, सो दिस कुड नॉट बी। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन, नहीं यार, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन कैसे? मैं बोल रहा हूँ बायोबिलिटी यहाँ पे अच्छा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी सीधा सीधा सही आंसर है। 100%। इट्स डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, इट इज डिस्कम्फर्टिंग व्हेन वी एडमिनिस्टर। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही। आई सी एक या दो स्टूडेंट ने सी सिलेक्ट किया था। आई होप दे आर क्लियर विद इट। लिमिटेड शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ कंपेरेबल है। अब लिमिटेड शेल्फ लाइफ क्या टेबलेट से कम है? यस, हो सकता है। क्या पेरेंट्रल से कम है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो इट्स अ वेरी कंपैरेटिव थिंग टू कंसीडर। सो दैट इज ऑल फॉर द रेक्टम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज योर इनहेलेशनल रूट। ठीक है, इनहेलेशनल रूट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। सो इनहेलेशनल रूट की जब मैं बात करता हूँ, लेट्स से टॉक अबाउट। सो इनहेलेशन रूट की जब मैं बात करता हूँ, सो आइदर वाया नोज और आइदर वाया माउथ आई एम ट्राइंग टू इनहेल समथिंग। सो यहाँ पे जो मेरा एजेंडा है वो है डिलीवर ड्रग टू लंग्स। लंग्स तक ड्रग को मुझे डिलीवर करना है, ये मेरा एजेंडा है। इसमें एग्जांपल्स है ना, सीधे से एग्जांपल्स है। यू हैव गॉट योर एरोसोल्स, जिसको हम एज अ टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। यू हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज MDI, जिसको हम मीटर्ड डोज
इनहेलर्स बोलते हैं। सेकेंड यू हैव गॉट DPI, जिसको हम ड्राई पाउडर इनहेलर्स बोलते हैं। सो इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म्स फुल फॉर्म्स याद रख लेना प्लीज गाइस, इट्स इम्पोर्टेंट। जब एरोसोल्स पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स, आई विल कम वंस अगेन ऑन टू दिस, बट इसको अच्छे से याद रख के चलना। सो इनहेलेशन रूट में हम एक बार MDI देख लेते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स। सो इनका काम क्या है, एक फिक्स्ड डोज ड्रग को पेशेंट को डिलीवर करना, एक फिक्स डोज को पेशेंट तक डिलीवर करते हैं, एरोसोल फॉर्म में ही डिलीवर करते हैं। सो अगर मैं इनके एडवांटेजेस की बात करूं, सो दे हैव गॉट अ बंच ऑफ एडवांटेज। दे हैव गॉट अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत जैसा डिलीवर किया वैसे ही वो लंग्स में पहुंच जाएगा और तुरंत काम करने लगेगा। ये यूजुअली आपके इनहेलर्स आते हैं, स्प्रे इनहेलर्स आते हैं, तो आप इनको कैरी कर सकते हो। सो दे आर वेरी पोर्टेबल एंड वेरी कन्वीनियंट टू ट्रैवल विद। इसमें से जो डोज आता है वो प्रिसाइज डोज आता है, तो पेशेंट्स को डोजिंग का इशू नहीं होता है, एक फिक्स डोज में दिया जाता है, विच इंश्योर्स के पेशेंट्स को इनफ एक्यूरेट डोज में ड्रग मिल रहा है। देन वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इसको कैसे लेना है। पेशेंट एजुकेशन यहाँ पे चाहिए रहता है। पेशेंट एजुकेशन कैसा चाहिए रहता है, यू नीड अ कोऑर्डिनेशन। जैसे ही आप स्प्रे करोगे वैसे ही आपको इनहेल करना है, वो एक्सरसाइज पेशेंट को काफी कराना पड़ता है, एज अ फार्मासिस्ट हमें समझाना पड़ता है इसको कैसे यूज करना है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। इनका शेल्फ लाइफ काफी लिमिटेड होता है, सो इट्स वेरी लिमिटेड शेल्फ लाइफ। एंड इनमें हम यूज करते हैं गैसेस जिसे हम बोलते हैं प्रोपोलेंट्स। एंड जो प्रोपोलेंट्स होते हैं दे आर नोन फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज, ओजोन लेयर को डैमेज करने के उनके कुछ हिस्ट्री रहा है। सो उसको हम अकाउंट करते हैं एज अ डिसएडवांटेज। सो ये हो गया आपका इनहेलेशन का एक प्रोडक्ट। इनहेलेशन का जो दूसरा प्रोडक्ट था विच वाज ड्राई पाउडर इनहेलर्स, अगेन इनहेलर्स है, बट इसमें आपको जो मेडिसिन दिया जाता है वो ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है, एरोसॉल के फॉर्म में नहीं। सो पेशेंट को ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में जब हम देते हैं तो हम एक एडवांटेज क्रिएट करते हैं, वो है इसमें प्रोपोलेंट का जो गैस है उसका यूज नहीं करते, तो जो एनवायरमेंटल कंसर्न जो हमने पूरा देखा था वो यहाँ पे कम हो जाता है। इसमें आपको वो कोऑर्डिनेशन जो मैंने आपको बताया था, पेशेंट को हमें ट्रेन करना पड़ता है, वो कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहता, और इनका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है। सो जो तीनों चीजें हैं उसे हमने यहाँ पे कॉम्बैक्ट कर लिया, जो MDI का डिसएडवांटेज था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देयर डिसएडवांटेजेस, इनका डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा, सिंस ये पाउडर है दे आर मॉइस्चर सेंसिटिव, मॉइस्चर के टच में आके ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन्हें इनहेल करने के लिए आपको एफर्ट लगेगा। इनहेल करने के लिए एफर्ट कैसे लगेगा, ये पाउडर है तो आपको उसको पूरा अंदर इनहेल जोर से करना पड़ेगा, जो कुछ पेशेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ पे जो डोज एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा कम होता है व्हेन यू कंपेयर इट टू MDIs। सो दैट इज योर MDIs। सो ये हो गया आपका इनहेलेशन रूट। इसके सिवा आई के प्रोडक्ट्स है आपके, या आपके नेजल प्रोडक्ट्स और भी आते हैं, सॉल्यूशन वगैरह आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। बट हमने क्या किया है, आज कवर करने की कोशिश की है ऑल द इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स जो आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, नाइपर और कोई भी आप फार्मास्यूटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उठा लो, सबके हिसाब से बहुत जरूरी है। सो आई विल ट्राई टू रैप अप दिस सेशन नाउ। सो हमने मेजोरिटी ऑफ थिंग्स कवर कर लिया। आई विल जस्ट टेक अ पॉज हियर, किसी को कोई भी डाउट है विद इन दिस सेशन या टीचिंग मेथड में, या रिगार्डिंग एफओ माइंड, रिगार्डिंग जीपेट,
या कोई फीडबैक है, इफ यू वांट द सेशंस टू बी स्लो, फास्ट, कुछ भी है, आई एम हियर टू टेक दोस क्वेश्चंस, टेक दोस डाउट्स, टेक दोस फीडबैक्स, so that we can see you getting into your master's degree, see you in the next session. ठीक है, अगर कोई भी डाउट है प्लीज ऐड दैट डाउट और राइट नो अगर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है feel free to add that doubts in the chat window. We'll take that doubts, and I'm very happy that you're starting your preparations for your master's degree. अगर आप कोई फेज में हो तो we'll try to get you a customized plan जिससे आपका प्रिपरेशन बेटर हो सके। अच्छा, सब पैरेंटल्स में वायल बॉटल इन्फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है? सो हीर ये तीनों चीजें हैं ना, दिस आर पैकेजिंग डिफरेंसेस। सो वायल्स क्या होते हैं? वायल्स यू विल सी 10, 15, 20 ml के वायल्स आते हैं, यू कैन उसमें सीधा इंजेक्शन डाल के आप इंजेक्शन फिल कर सकते हैं। बॉटल्स आर यूजली योर बॉटल्स जहाँ से आप एम्प्यूल बॉटल्स बोलने की कोशिश कर रहे थे, एम्प्यूल्स आर सिंगल यूज। इन्फ्यूजन्स क्या होते हैं? यूजुअली लीटर्स में आते हैं, जो आप यूजुअली डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स को इन्फ्यूज कर रहे हो। सो यूजुअली पैक साइज के हिसाब से पैकेजिंग डिफरेंस होता है और यूजेस डिफरेंस पे वो डिवाइड किया जाता है। अच्छा, वाई पेरेंटल सस्पेंशन एंड इमल्शंस हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एफर्ट? वेरी गुड क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हैज गॉट इट्स विस्कोसिटी, वो सीधा जाके मिल जाएगा आपके ब्लड के अंदर। बट सस्पेंशन एंड इमल्शन का क्या है? दे हैव गॉट अ डिफरेंट विस्कोसिटी, दे हैव गॉट डिफरेंट कंपोजिशन। तो जब उसको ब्लड के साथ डिसॉल्व होना है, मिलना है, इट विल टेक इट्स ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिससे उसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ही श्रेय, किसी और का कोई भी क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस गाइस? प्लीज प्लीज ऐड दैट इन द चैट विंडो। You don't have any questions, I'll say just feel free to drop from this session. I will see you in the next session and we'll continue our journey for preparation for our competitive exams. And I wish you best of luck for your preparations and for your future with us. अगर कोई भी डाउट है तो feel free to add that. Just stop the recording. आपको ये recording भी मिल जाएगा on our Appomind app. And जो भी मैं आज लिख रहा था, I'll get that as a PDF form also. ताकि you can refer back, you can hear the recording and speed up your preparation. Thank you. Thank you for joining in.